So, very good evening, all the participants. Today, we would like to have a look at the various disciplinary cases. Now, if we read the disciplinary cases, what comes to our mind is that the points on which IBBI grills an insolvency professional. As you know, there is an inspection and investigation mechanism. And besides that also, based on a complaint, based on a grievance, based on the strictures passed by the adjudicating authorities or appellate authorities, IBBI can take action against insolvency professionals. What is important to note is that if IBBI wants to initiate any disciplinary proceedings against you, normally, first of all, they will call for information. It could be through the inspection mechanism. It could be through investigation mechanism. And if anything concrete comes to the knowledge of IBBI, they will issue you a show cause. And whenever the moment a show cause notice is issued, your AFA stands suspended. Another important point to note while reading all these disciplinary cases is that you are the only person before the IBBI if you are issued a show cause notice. It is not a trial, so you cannot invite other people like COC or resolution applicant. Whatever you have to say either through the documentation which you have already maintained, say in the form of COC minutes, right? Or any other interaction which is properly documented. If something is not documented, then you cannot say that I discussed this thing and it was agreed or not agreed. So your records, so they will speak on their own. You cannot, because it is not a trial, you cannot invite other people, you cannot invite other witnesses. And in most of the cases, you will find that insolvency professionals certificate has been suspended for a period, say 3 months, 6 months, 1 year, 2 years, 3 years, or even for lifetime. So we have to be very careful while handling the assignments. And such disciplinary cases will help us in solving our case studies on professional ethics. As you know, in our syllabus, because at the back of our mind should be the examination. So we have to attempt 3 questions of 2 marks each in the case studies on professional ethics. And where from those questions will come? Those questions will come through either the provisions which are contained in the IBC code, regulations, or the practical handling of situations which the examiner wants to test. So you cannot say that, okay, this and this thing was not written in the syllabus, in the code. So how can you expect us to answer this question? Because IBBI also understands that the moment you pass this examination, then there is no stopping. You will ultimately become an insolvency professional. Because you will, once you pass the examination, then this pre-registration educational course of 50 hours that everybody passes. So that is basically practical training, practical orientation, you can say, for 50 hours. And then subject to furnishing of documents and your integrity, etc. So they will normally allow you enrollment as well as registration. So with this background, with this understanding, let us see the various cases. Now in these cases, what is important? Although because these are all published cases. So even if we take names, there is no issue. But we have anonymized them just so that we don't get biased, because we know most of the people, right?
and these are the issues, these are the infractions, these are the irregularities committed by them, and the findings of the IBBI. Our aim should be to learn through this. Although if we take names, nobody stops us. Okay. So I think my this screen is visible. Is it visible? Yes, sir. Yes, Okay. sir, visible. Okay. 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 So should I make it larger or it's sufficient? It's okay, sir. Okay. So issue analysis. What it says? This is the first case. Just so in this case, what was alleged? So we'll see it all in summary form, because we'll try to cover 30-40 cases so that we get more learning. So it was the case of a CIRP of a stalled group housing corporate debt, because sometimes group housing projects, they are stalled due to one reason or the other, right? And then of course builders cannot pay, and then CIRP and liquidation takes place, right? RPs, liquidators are appointed. They conduct the process, but there are some infirmities in the process. So this first issue is the CIRP of a stalled group housing corporate debtor and conduct of the resolution procedure. So 5 alleged contraventions were there, 3 upheld and 2 dropped in this case. So what was the case? What was the allegation? Let us see. Executed construction contract and issued work order without valid authority or RERA approvals, right? So it failed to inform the allottees of the implications. I have included the relevant section and the relevant regulation also, right? So section 208, you will find the reference in almost every case. So 208, as you know, is code of conduct, right? In various processes, you will find that he has to conduct the entire process as per the sections contained in section 208. ठीक है, हर एक प्रोसेस में लिखा होता है, लास्ट में लिखा होता है ना. तो ये 208 है क्या? ये 208 है फंक्शंस एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोविजंस. तो क्या था इसमें एलिगेशन क्या था? एलिगेशन था कि ही हैज एक्सिक्यूटेड कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट and issued work order without valid authority or RERA approvals, and he failed to inform the allottees of the implications. अब आरपी ने क्या स्टैंड लिया? आरपी ने कहा वर्क वाज ओनली इंटीरियर फर्निशिंग विच इज एग्जाम्प्ट अंडर रेरा. ठीक है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 सबसेक्शन सी एंड अथॉरिटी बिल्डिंग. ठीक है, रेगुलेशन 5 सब रेगुलेशन 5 सब रेगुलेशन ई. सो नो मार्केटिंग और सेल वाज इन्वॉल्व्ड. सीलिंग ऑर्डर वाज क्वेश्चन्ड बाय द हाई कोर्ट and in principle approval obtained and COC was kept informed. अब इसमें क्या हुआ? हाई कोर्ट भी चले गए थे, है ना? तो इस पर सीलिंग ऑर्डर था और सीलिंग ऑर्डर भी क्वेश्चन कर दिया था हाई कोर्ट ने, और इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लिया था, और COC was also kept informed. किसने कहा? आरबी. IBBI ने कहा IBBI ने कहा कि दिस कॉन्ट्रावेंशन इज वैलिड, राइट? So contract scope in fact covered civil or structural construction of 7 towers in all respects, not mere internal alterations. So activities also violated the High Court order dated 3rd of December 2024. So submissions found not in. क्या होता है कि आपके माइंड में एक चीज है, आपके माइंड में क्या है कि भैया ये तो इंटरनल फिनिशिंग है ना? उसने कहा कि भाई आपका तो सिविल और स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन है, 7 टावर्स इन ऑल रिस्पेक्ट्स. तो ये जो है इसके लिए आपको रेरा का अप्रूवल लेना था. आपने क्या किया? आपने वैलिड अथॉरिटी का अप्रूवल नहीं ले लिया और रेरा का अप्रूवल भी नहीं लिया. दूसरा क्या एलिगेशन था? डिविएटेड फ्रॉम BBA टर्म्स, एक्सक्लूडेड लिवेबिलिटी आइटम्स, लिफ्ट्स, DG, STP, बाउंड्री वॉल एटसेट्रा. levied rupees 150 square feet interim finance and rupees 25,000 token not provided for in the BBAs, builder buyer agreements. ठीक है. आरपी का स्टैंड क्या था? स्कोप वाज COC approved, इंटीरियर फर्निशिंग एक्सक्लूजन्स deliberated across the 30th, 38 to 40th, 43rd मीटिंग. अब आप बोल रहे हो कि भाई डेलिब्रेशन हुआ. डेलिब्रेशन तो हुआ, बट रिकॉर्ड कहां है? रिकॉर्ड बोलना चाहिए. आप COC को वहां नहीं बुला सकते.
अगर आईबीबीआई आपके अगेंस्ट में एक्शन लेता है तो आप वहां सीसीसी को नहीं बुला सकते, आपके रिकॉर्ड बोलने चाहिए। तो जो भी आपने डिस्कशन किया उससे क्या है कि आपको वो सीओसी के मिनट्स में रिकॉर्ड करना है, क्योंकि कल को आप सारे लोग इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बनने वाले हो। तो जब बनोगे तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्यों वरना बड़ी मेहनत से पास होता बंदा और फिर पता चले कि लाइसेंस ही सस्पेंड हो गया, है ना। तो इसमें डिसीजन ऑफ आईबीबीआई क्या था? इट वाज नॉट हेल्ड एक्सेप्टेड इन इंसॉल्वेंसी, फंड्स आर इनएडिक्वेट, स्टेक होल्डर्स legitimately prioritized works within available funds by substantial vote and such funding fits the court's interim finance scheme। तो कई बार इंटरिम फाइनेंस पे भी क्वेश्चन उठ जाता है, ठीक है। अगला ये है कि मटेरियल नॉन डिस्क्लोजर्स इन दी आईएम, क्योंकि आपको मालूम है कि आईएम में जो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम है उसमें आपको डिस्क्लोजर देना पड़ता है। अब मान लीजिए आप कोई डिस्क्लोजर नहीं दें तो क्या होगा? लैंड एरिया, यूनिट पेंडिंग और कंप्लीटेड, अथॉरिटी एंड नॉन अप्रूवल्स, लिफ्ट। सर यस प्लीज। सर सॉरी, मैं बहुत बेसिक एक पॉइंट मुझसे मिस हो गया। जो पहला पॉइंट था एलिगेशन का, कि जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया तो वो आईपी ने अवार्ड किया विदाउट वैलिड अप्रूवल्स। हाँ 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 ओके। हाँ, हाँ रेरा का अप्रूवल लेना है ना। भाई हाँ आईपी ने क्या कहा? आईपी ने ये कहा कि देखो जी ये तो इंटीरियर फिनिशिंग का काम था, हाँ, इसमें कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, कि मेरे को रेरा के अप्रूवल तो जरूरत नहीं थी। आईबीबीआई ने ये कहा भाई आप आपका काम देखो, आपका क्या है, वो ये है सिविल स्ट्रक्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ 7 टावर्स इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो इसकी ये तो इंटरनल ऑल्ट्रेशन में कवर नहीं होता। ठीक है सर, ठीक है सर। हम्म थैंक यू सर। हम्म। अब ये आता है मटेरियल नॉन डिस्क्लोजर इन आईएम। अब आपने आईएम इशू करते हो तो आईएम में भी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या क्या डिस्क्लोज करना है। आपने कुछ नहीं करोगे तो क्या होगा? जैसे आपको यहाँ लैंड एरिया, यूनिट पेंडिंग, कंप्लीटेड, अथॉरिटी एंड रेरा नॉन अप्रूवल्स, लिफ्ट डीजी, एसटीपी बजट ट्रीटमेंट, अनसोल्ड इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने डिस्क्लोज नहीं की। आरपी ने क्या कहा? आरपी ने कहा जी मैंने तो सारी आइटम्स डिस्क्लोज की हैं अक्रॉस आईएम, वीडीआर, एनेक्सर्स, लैंड एरिया इतना, यूनिट्स इतने पेज पे डिस्क्लोज किया है, अथॉरिटी एंड रेरा पोजीशन इतने पे किया है, उसने सारा पेज नंबर से दिया, ठीक है। तो सर ये आईबीपीए ने क्या केस कहा? जो है, ये केस 3 है, सॉरी। केस 2 तो दूसरा है सर, उसमें नहीं नहीं नहीं, एक ही केस डेविएटेड है फ्रॉम भी। ये सारे का सारा एक ही केस। ओ, ये सारे का सारा एक ही केस है। एक केस में एक से ज्यादा एलिगेशन लगते हैं ना, ये केस ठीक है, एक ही ठीक। चल रहा है। एक हाउसिंग प्रोजेक्ट ओके। था जो रुका हुआ था, है ना। अच्छा। तो अब होता क्या है, इसको होम बायर्स ही एग्जीक्यूट कर रहे थे। आपको मालूम है होम बायर्स भी रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन सकते हैं, ठीक है। और होम बायर्स के केस में ज्यादा खतरनाक होता है मामला। दीज आर द एलिगेशंस इन द दीज आर सेम। द एलिगेशंस, दिस इज द सबमिशन ऑफ आरपी एंड दिस इज द डिसीजन ऑफ द आईबीपी ऑन ठीक ईच ठीक। एंड एवरी एलिगेशन, ठीक है जी। तो इसने कहा जी मैंने तो सारा डिस्क्लोज किया है। आईबीपीआई ने कहा कि भैया आपने डिस्क्लोज नहीं किया है। तो डीसी वाज सेटिस्फाइड दैट रेगुलेशन 36(2) डिस्क्लोजर्स वर सब्सटेंशियली कंप्लाइड विद इवन इफ स्प्रेड अक्रॉस आईएम, एनेक्सर्स एंड वीडीआर। सोल एक्सेप्शन साइट मटेरियल्स या स्क्रैप जो है दे वर कैरिड ओवर टू कॉन्ट्रावेंशन नंबर 4, ठीक है। तो मतलब आपने, उसने कहा स्क्रैप के अलावा आपने सब चीजें डिस्क्लोज की है। अपने को क्या देखना है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं जब डिसीजन पढ़ते हैं तो वो सोचते हैं यार डीसी ने ऐसा डिसीजन दे दिया, आईबीबी ने ऐसा डिसीजन दे दिया। हमारे को क्या करना है? हमारे को उसमें से जो सीखने वाली बात है वो सीखनी, कि भाई अगर कल को हमारे सामने ऐसे केस आ जाए तो हमें ये सब चीजें भी डिस्क्लोज करनी है, ठीक है। आपको स्क्रैप के बारे में भी डिस्क्लोज करना। failed to disclose site materials in the information memorandum and to the COC, failed to report proceeds, ये अगला एलिगेशन था। आरपी ने क्या बोला? इन्वेंटरी डिस्क्लोज, स्क्रैप वाज कंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑलरेडी चार्ज ऑफ इन प्रायर ईयर्स, सेल वाज डन विद सीओसी अप्रूवल, ठीक है, वाया ई बिडिंग टू हाईएस्ट बिडर, रिपोर्ट शेयर्ड विद होम बायर, ठीक है, प्रोसीड्स डिस्कस्ड इन 39 COC एंड इट वाज रिलाइड ऑन रेगुलेशन नंबर 29। क्या कहा? आईबीबीआई ने बोला सेल प्रोसेस एंड प्रोसीड्स डिस्क्लोजर्स वर इन ऑर्डर बट द मटेरियल्स known to Mr. X since the 26th COC were omitted from the updated IM. The charge of defense was rejected
disclosure was his duty. Contravention held on the non-disclosure limit. ठीक, तो इसका क्या मतलब है? वो ये कहता है कि स्क्रैप जो है वो तो कंस्ट्रक्शन वेस्ट था, इट वाज ऑलरेडी चार्ज ऑफ। तो आईबीबीआई ने बोला भाई चाहे चार्ज ऑफ हो फिर भी आपको डिस्क्लोज करना है। ठीक है, अगला पॉइंट था इशूड वर्क ऑर्डर टू द कॉन्ट्रैक्टर कंसोर्शियम। अब इन्होंने क्या किया कि कंसोर्शियम को ये वर्क ऑर्डर इशू कर दिया, मतलब जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो भी कंसोर्शियम होगा। ठीक है, तो issued work order to the contractor consortium while the RA consortium's plan common members was near submission। ठीक है, मतलब क्या होता है, दो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है, एक आ गया कोई कंसोर्शियम कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा जो है वो मान लीजिए आर ए वाले मेंबर्स हैं। ठीक है, जो कॉमन मेंबर्स हैं, जो होम बायर्स हैं, वो भी अपना प्लान सबमिट करते हैं ना। मान लीजिए दो पार्टीज है, एक होम बायर्स है और दूसरा कोई कंसोर्शियम कॉन्ट्रैक्टर है। होता क्या है, कई बार आरपी को भी लालच दे देती है दूसरी पार्टी कि यार हमारा कर दो, इस तरह से, है ना। अवार्ड एंड प्लान अप्रूवल फेल विद इन सीओसी कमर्शियल विजडम। आरपी ने क्या बोला, अवार्ड एंड प्लान अप्रूवल फेल विद इन सीओसी कमर्शियल विजडम। कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड प्रीसीडेड द सेकंड फॉर्म जी। Work order was procedural on 60% tower wise home buyer consent. So clause 48 let the COC abandon or reduce. No legal bar on awarding a contract to an RA before plan approval. ठीक है, इन्होंने बोला जी केस शशिधर वाले केस में भी यही हुआ। अब इसमें क्या हुआ, स्प्लिट उनका ओपिनियन था, देन इट वाज अपहेल्ड। तो कंडक्ट वाज नॉट बोनाफाइड। ठीक है, इट विशिएटेड ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि आपको you have to be honest and as well as you have to appear to be honest also। ठीक है, तो आईबीबीआई का फाइंडिंग क्या था, कंडक्ट वाज नॉट बोनाफाइड, इट विशिएटेड ट्रांसपेरेंसी, कॉन्फ्लिक्ट वाज अनडिस्क्लोज्ड, 3 years सस्पेंशन। ठीक है, एस गर्ग ने क्या बोला, मतलब दो मेंबर थे, जैसे जयप्रसाद का ओपिनियन ये था कि भाई आई रिकमेंड 3 years सस्पेंशन। एस गर्ग जो होल टाइम मेंबर थे, उनका क्या था, अवार्ड ऑलरेडी सीओसी नोन, so execution could not sway the COC, flagged for reinvestigation, the Prakriti withdrawal without the EMD forfeiture, the EMD furnished by check instead of demand draft as required by the RFRP। कई बार क्या होता है, आरएफआरपी में तो लिखा होता है, मान लीजिए भाई आपने डिमांड ड्राफ्ट से ईएमडी देनी, अब आपने क्या किया, डिमांड ड्राफ्ट की बजाय चेक ले लिया। ठीक है, तो वो भी गलत है, जो आरएफआरपी में लिखा है उसके हिसाब से चलना है आपको। ठीक है, तो EMD furnished by check instead of demand draft as required by the RFRP, and whether that non-conforming plan should have been placed before the COC at all, and the clause 48 structuring। तो इन्होंने बोला भाई मेरे को लगता है कि 2 साल का सस्पेंशन काफी है। थर्ड डीसी, मिस्टर एक्स admitted he never disclosed the conflict despite great commonality। कई बार क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, अगर आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो भी आपको डिस्क्लोज करना है। ठीक है, एज आरपी और सीओसी चेयरमैन ही बोर ए नॉन डेलीगेटेबल ड्यूटी ऑफ फुल फेयर एंड टाइमली डिस्क्लोजर एंड कुड नॉट शेल्टर बिहाइंड कमर्शियल विजडम एब्सेंट कंप्लीट डिस्क्लोजर। ठीक है, तो इट वाज अपहेल्ड कंकर्ड विद J%। अब नेट आउटकम क्या हुआ कि 5 जो कॉन्ट्रोवर्शियस थी, 3 वर अपहेल्ड एंड 2 वर ड्रॉप्ड। और जो स्प्लिट पॉइंट था, the third DC concurred with the harsher view, so registration was suspended for 3 years effective 30 days from 5th of May 2026। बड़ा recent case है। Alienated threat, withdrawal of the earlier plan without EMD forfeiture। ठीक है, the EMD tendered by check rather than demand draft as required by the RFRP, and the clause 48 structuring was left open for separate investigation। तो इसमें मेन बात क्या है, देखो हमें पूरा केस समझ आया हो या ना आया हो, अगर हमारे से क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि जी आरएफआरपी में लिखा हुआ है कि ईएमडी डिमांड ड्राफ्ट से देनी है, आपने चेक से एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, तो वायलेशन है कि नहीं, इतनी बात तो याद रहेगी हमारे को। ठीक है, यस सर, ये वायलेशन है। दूसरी बात क्या है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आपको डिस्क्लोज करना है। अगर मान लीजिए कोई आइटम चार्ज ऑफ है तो भी उसका डिस्क्लोजर करना है। तो इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जो भी सीओसी के मिनट्स हैं,
सब में आपको ट्रांसपेरेंट रहना। ट्रांसपेरेंसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और अगर कोई भी अथॉरिटी का अप्रूवल लेना है तो वो भी अप्रूवल आपको लेना है। मान लो कहीं पर रेरा का अप्रूवल चाहिए, ऐसा नहीं कि आप रेरा का अप्रूवल लिए बिना काम चला लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देख। दूसरा केस, जरूरी नहीं है कि सारी बातें आपको याद रहें, लेकिन कुछ कुछ बातें आपको याद रह सकती हैं, और वो एग्जामिनर भी समझता है कि भाई अभी स्टूडेंट का लेवल बहुत हाई नहीं है, ठीक है, लेकिन वो कुछ कुछ बातें पूछ लेता है इनमें से, ठीक है। जैसे बात तो बहुत सिंपल है, भाई चेक से ले लिया आपने डिमांड ड्राफ्ट की बजाय, हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए। डिसिप्लिनरी केस स्टडी, लिक्विडेटर्स फीस, टाइम एक्सक्लूजन एंड कंडक्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक तो है थ्रेशोल्ड लीगल इश्यूज ऑन फी कंप्यूटेशन। अब जो लिक्विडेशन कॉस्ट है, अमेंडेड डेफिनेशन आई है लिक्विडेशन कॉस्ट की, इंक्लूडिंग गोइंग कंसर्न कॉस्ट। इट अप्लाइज टू लिक्विडेशंस कमेंस्ड बिफोर 25। ऐसा ये ना बहुत सारे इश्यूज आते हैं कि कोई भी जो अमेंडमेंट है वो रिट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव। नॉर्मल रूल क्या है, नॉर्मल रूल ये है कि कोई भी अमेंडमेंट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड इज प्रोस्पेक्टिव इन नेचर, ठीक है। कोई भी आपकी जो अमेंडमेंट है वो रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती अनलेस इट इज क्लियरली रिटन इन द नोटिफिकेशन। अब यहां पर एक सवाल आया कि भैया ये जो अमेंडेड डेफिनेशन आई है लिक्विडेशन कॉस्ट की, इंक्लूडिंग गोइंग कंसर्न कॉस्ट, whether it applies to liquidations commenced before 25th जुलाई। तो आरपी ने क्या कहा, आरपी ने कहा कि प्री अमेंडमेंट रेगुलेशंस अप्लाई टू 5 ऑफ द 8 सीडीज, गोइंग कंसर्न कॉस्ट नॉट डिडक्टिबल फॉर देम रिलाइंग ऑन बोर्ड सर्कुलर। अब इसने बोर्ड सर्कुलर का रेफरेंस दिया, ठीक है, डेटेड 26 जुलाई 2019, ठीक। अब बट ये प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया। क्या कहा इसमें, इसमें ये कहा, एक मिनट, the overarching definition in section 5 subsection 16 of the code is unchanged since inception. Going concern cost was always part of liquidation cost, so pre or post amendment distinction is not tenable for fee computation, ठीक। अब इसके लिए हमें क्या पढ़ना है, एक तो हम सेक्शन 5 सबसेक्शन 18 16 पढ़ लेते हैं, और दूसरा जो हमारा ये जो लिक्विडेशन कॉस्ट की डेफिनेशन में जो चेंज हुआ उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। सेक्शन 5 सबसेक्शन 16 में क्या बोलते हैं, साथ साथ में क्या है नॉर्मली ना सेक्शंस भी हमने लिखे हुए हैं, एक आदमी शायद छूट गया होगा, नहीं तो ज्यादातर में लिख रखे हैं। तो सेक्शन 5 सबसेक्शन 16 में लिक्विडेशन कॉस्ट मींस एनी कॉस्ट इनकर्ड बाय द लिक्विडेटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लिक्विडेशन सब्जेक्ट टू सच रेगुलेशंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कोड। ये तो हमारा डेफिनेशन है सेक्शन 5 सबसेक्शन 16 में। अब हम लिक्विडेशन रेगुलेशंस पर चलते हैं। लिक्विडेशन रेगुलेशंस में क्या है, लिक्विडेशन कॉस्ट की डेफिनेशन कहाँ है, एक बार देख लेते हैं। ये है आपकी सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ए, ठीक है, 2(1) ई ए में डेफिनेशन है रेगुलेशन में, लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशन। क्या बोलता है, इंटरेस्ट, ये लिक्विडेशन कॉस्ट अंडर क्लॉज 16 ऑफ सेक्शन 5 मींस दिस, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि जो जुलाई में अमेंडमेंट हुई वो क्या हुई। अगर आपके पास बुक होगी तो बुक में पुराने वाला भी दिया रहता है, हमने भी दिया हुआ, अपने कोड के अंदर भी दे रखा है, जो हमने पीपीटी दे रखी है उसमें भी है, ठीक है। तो आपको इसमें पढ़ना क्या है कि पहले क्या डेफिनेशन थी और बाद में क्या डेफिनेशन है। पहले क्या क्या था, इसमें आ गए थे, पहले आपके पास डी पार्ट तक था, फीस पेएबल टू द लिक्विडेटर अंडर रेगुलेशन 4, रिमनरेशन पेएबल बाय द लिक्विडेटर अंडर रेगुलेशन 7, अब ये हो गया 1 of 7, कॉस्ट इनकर्ड बाय द लिक्विडेटर, इंटरेस्ट ऑन इंटरिम फाइनेंस। हाँ, अब बात ये है कि ये 5th पॉइंट था, 5th पॉइंट पहले नहीं था, ठीक है। ये जो कॉस्ट इनकर्ड बाय द लिक्विडेटर इन कैरिंग ऑन द बिजनेसेस ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर एज ए गोइंग कंसर्न, ये कब आया आपका, ये आया 2019 में। तो इस पर सवाल उठ गया, ठीक है, कि भाई गोइंग कंसर्न कॉस्ट को लिक्विडेशन कॉस्ट में लेना है या नहीं लेना है। क्वेश्चन ये उठा, क्योंकि 2009 पुराना केस चल रहा होगा 2019 से पहले।
तो आईबीबीआई ने क्या कहा? आईबीबीआई ने कहा जी ओवरआर्चिंग डेफिनेशन इन सेक्शन 5 सबसेक्शन 16 ऑफ द कोड इज अनचेंज्ड सिंस इंसेप्शन, गोइंग कंसर्न कॉस्ट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ द लिक्विडेशन कॉस्ट। क्योंकि सेक्शन में तो पहले लिखा हुआ था ना, रेगुलेशंस में नहीं लिखा था। कोई चीज अगर सेक्शन में लिखी है, रेगुलेशन में नहीं लिखी, तो आप ये मान के चलो कि वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। सेक्शन 5 सब सेक्शन 16 देखो तो क्या लिखता है? लिक्विडेशन कॉस्ट मींस एनी कॉस्ट इनकर्ड बाय द लिक्विडेटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लिक्विडेशन सब्जेक्ट टू सच रेगुलेशन। जब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लिक्विडेशन लिख दिया तो आप ऑटोमेटिकली आ गया उसमें, है ना। इसमें पॉइंट क्या था? इन्होंने कहा जी जो सेक्शन जो अपना ये आया है जुलाई 2019 में, इसके थ्रू ये अमेंडमेंट आई है, कॉस्ट इनकर्ड बाय द लिक्विडेटर। ठीक, तो आईबीबीआई ने कहा ये तो भैया पहले से ही शामिल था इसमें। ठीक है, तो प्री और पोस्ट अमेंडमेंट डिस्टिंक्शन इज नॉट टेनेबल फॉर फीस कंप्यूटेशन। अगली बात कहता है कि अमाउंट रियलाइज्ड। अब अमाउंट रियलाइज्ड पे बड़ा चक्कर होता है कई बार। अब मान लो कोई, ये तो देखो कॉमन सेंस की बात है, अगर कोई कैश या बैंक बैलेंस है उसको थोड़ी आपने कोई रियलाइज कर लिया, उसमें तो आपका कोई एफर्ट नहीं है। अब आप कई लोग चालाक ज्यादा चतुर बनते हैं, उसके ऊपर भी फीस चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो अमाउंट रियलाइज्ड में क्या है? इट एक्सक्लूड्स लिक्विडेशन, कैश, एफडी, म्यूचुअल फंड्स, कोटेड शेयर्स। मतलब क्या होता है, मान लो कोटेड शेयर्स भी है, ठीक है, आपने एक दिन में किया डीमैट अकाउंट के थ्रू, पैसा आपके पास आ जाएगा। म्यूचुअल फंड्स आपने रियलाइज किया, उसमें आपने एफर्ट तो कुछ नहीं किया ना, ठीक है ना। तो फीस इसमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन पर मिलती है, रियलाइजेशन पर नहीं मिलती। ठीक है, आरपी ने क्या कहा? आरपी लिक्विडेटर ने चैलेंज एज इंट्रोड्यूसिंग ए न्यू चेंज ऑफ फॉर्म एफर्ट स्टैंडर्ड नॉट फाउंड इन द कोड। उन्होंने कहा देखो जी ये एफर्ट कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा ये तो कोड में नहीं लिखा। ठीक है, तो इट वाज स्ट्रक डाउन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। तो लिक्विड एसेट क्लैरिफिकेशन इज नॉट सस्टेनेबल। ठीक है, इसमें एक सर रियल केस है, शायद लोगों को फायदा होगा। हाँ जी, ये एनएचआई के 100% एसपीवी थी, अहमदाबाद वडोदरा पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड। वो जो प्रोजेक्ट था सड़क का, वो पहले ही एनएचआई में चला गया, मगर कंपनी लिक्विडेट नहीं हुई, 100% एसपीवी थी। हाँ, तो बाद में जब वाइंडिंग अप का इसके लिक्विडेशन ऑर्डर आया तो एक इंसान एज ए लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया। अब वो जो फीस उनकी उन्होंने बताया नहीं था, हाँ, तो उसमें ये हुआ कि भाई अब वो एनएचआई ने कुछ लोन हमको दिया था कंपनी को, तो कंपनी ने लोन वापस कर दिया। 100% एसपीवी थी एनएचआई। एनएचआई एक अथॉरिटी है, वो कंपनी एक्ट में नहीं है। तो जो लोन 10 करोड़ का लोन वापस किया एनएचआई को, तो उस पे सर्टेन परसेंटेज वो मैडम मांग रही थी। तो हमने कहा ये तो अगर ये वाइंडिंग अप हो जाए तो ये सारी चीजें तो एनएचआई की ही है, बाद में तो जो भी बैंक में है वो भी एनएचआई का ही पैसा है। 100% एनएचआई की एसपीबी, कोई बिल्कुल और बिल्कुल क्लेमेंट है नहीं, तो बिल्कुल इसमें ये केस एप्लीकेबल नहीं होता है। हाँ, मगर तो आप ना जो आप ये शेड्यूल ये कोड, केस ग्रुप पे भी डाल दीजिएगा, मैं उसकी समरी बना के डाल दूंगा एआई से। हाँ ये बड़ा जो वो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट केस पॉइंट है है, सर। आप ये पर्टिकुलर पॉइंट जी, हाईलाइट कर दीजिएगा, केस तो मिल ही जाएगा, है ना। तो केस ये हाँ ग्रुप एक में डाल रियल दीजिएगा केस है ये। तो सभी का बेनिफिट हो जाएगा। हाँ जी, वो जी वाला जी जी, तो पर्टिकुलर जैसा पॉइंट कि तो अच्छा ये रहेगा। हमारे और लिक्विडेटर के बीच की बात है, तो ये एक रियल वो सिचुएशन थी, तो हमने हाँ उसको नहीं एग्री बिल्कुल नहीं किया। बिल्कुल, हमने कहा हाँ वो तो फीस में ये कुछ भी केस लिया मिल कि जाएगा, सर्टेन केस परसेंट। जो ढूंढ करके ना आप एक बार ग्रुप में डाल दीजिएगा, तो उसकी समरी बना के ठीक, डाल देंगे, सभी के लिए बेनिफिट हो जाएगा। हाँ जी। राइट राइट। अगला पॉइंट क्या था? टाइम एक्सक्लूजन अलाउड ओनली वेयर एक्सप्रेसली ग्रांटेड बाय एनसीएलटी, एनसीएलटी या कोई। भाई टाइम एक्सक्लूजन क्या होता है? आप अपने आप तो नहीं ले सकते ना टाइम एक्सक्लूजन। तो आरपीआई लिक्विडेटर का स्टैंड क्या था? चैलेंज एज इंपोजिंग ए नॉन स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट टू अप्रोच ए फोरम। ठीक है, तो फीस इज सेल्फ कंप्लायंस बेस्ड। तो इट वाज स्ट्रक डाउन बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट। ठीक है, अगला क्या होता है? आईबीआई के डिसीजन के अगेंस्ट में भी आप अपील में चले जाते हो ना, तो वो सब चीज। अगला है अदर लिक्विडेशन कॉस्ट। तो ये सारे इस तरह से बहुत सारे इसमें कॉर्पोरेट डेटा स्पेसिफिक फीस फाइंडिंग्स, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस क्लेम्ड ओवर एंड अबाउट द रेगुलेशन फॉर स्केल फीस। ठीक है, तो आरपी ने क्या कहा कि जो शोकॉज नोटिस है इसकी कंप्यूटेशन एरोनियस है। द ओपी इशू, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस इशू, allegedly dropped by the inspecting authority. Decision of IBBI, it was rejected. Regulation 4 is exhaustive.
out of pocket expenses not chargeable over the scale fees. So claim that IA dropped it, found to be false, excess fees upheld. तो कई बार क्या होता है कि जो फीस है, फीस के अलावा भी आप चीजें चार्ज कर लेते हो, तो वो चार्ज करनी है या नहीं करनी वो आपको बहुत केयरफुली देखना है उस चीज को. सेल वैल्यू, लिक्विडेशन, कॉस्ट बेसिस. और लिक्विडेटर ने क्या कहा, रिवाइज्ड कैलकुलेशन अंडर सर्कुलर नंबर डेटेड इतना यील्ड से हायर एक्सेस फीस देन द आईएएस फिगर. तो डिसीजन ऑफ द आईबीबीआई इट वाज एक्सेप्टेड. आईएएस फिगर्स वर बेस्ड ऑन लिमिटेड रिकॉर्ड्स. आरपी इज हायर सेल्फ कंप्यूटेड रिफंड एक्सेप्टेड टू बी रिटर्न अंडर सेक्शन 53. Extension of first 6 months by 95 days. Delay in relinquishment of security interest. ठीक है. तो if there is a delay in relinquishment of security interest, अब इसमें कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट अगर आप इसको केस को डिटेल में पढ़ना चाहें तो डिटेल में भी केस में आपको ग्रुप में डाल दूंगा, तो उससे आप पढ़ सकते हैं. बट क्या है, बेसिक बेसिक आपको देख लेना है, इतना बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है आपको. इस स्टेज पे आपको देख लेना है कि जो एज ए स्टूडेंट आपके काम की चीजें वो उठा लो बस. ठीक है. ये सर तो मेरा एक क्वेश्चन है. हाँ. सर जैसे सपोज ये जो इतना लाइक ये जो इतना माइन्यूट जो होता है, हाँ. इसके अगेंस्ट में आईबीबीआई में कौन सीओसी जाता है कि इन्होंने कैलकुलेशंस ऐसे की है वैसे नहीं की है? नहीं नहीं नहीं, मैं बताया ना. देखिए ऐसा है, जब हम इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन वाला प्रोविजंस पढ़ते हैं उसमें ये लिखा है, देखिए आईबीबीआई को कुछ तो केसेस अपने सो मोटो बेसिस पे लेने होते हैं, रैंडम बेसिस पे, जैसे स्क्रूटनी होती है इनकम टैक्स में. ओके ऐसे यहाँ पर आईबीबीआई कुछ केसेस पिकअप कर लेता है. ओके उसके अलावा क्या होता है, आईबीबीआई भी देखता रहता है, एनसीएलटी की जजमेंट्स आती हैं. एनसीएलटी की जजमेंट में मान लो किसी आरपी के केस में कोई स्ट्रिक्चर पास कर दिया, कई बार एनसीएलटी लिख देती है आईबीबीआई को. कई बार कोई बंदा कंप्लेंट कर देता है, कई बार जो अनसक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो कंप्लेंट कर देता है ना. तो डिफरेंट सोर्सेज से आईबीबीआई के पास इंफॉर्मेशन आती है, तो ओके सर. आईबीबीआई उस बेसिस पे एक्शन लेती है. आईबीबीआई सबसे पहले क्या करेगी, उनको 10 दिन का नोटिस देगी, भाई देखो ऐसा है कि हम आपके पास आना चाहते हैं, तो 10 दिन का नोटिस. 10 दिन का नोटिस भी डिस्पेंस भी हो सकता है. नॉर्मली चीजें ऑनलाइन हो जाती है, भाई ऑनलाइन आप रिकॉर्ड भेज दो, ऑनलाइन हम जो उसको चीजों को वेरीफाई कर लेंगे. आपके पास जितने भी रिकॉर्ड है सब भेजो, है ना. तो इसीलिए वो प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स वाला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं ना भाई, 3 साल और 8 साल तक आपको हाँ प्रिजर्वेशन ऑफ जी हाँ रिकॉर्ड्स. जी. जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है, मिनट्स ऑफ मीटिंग क्यों बनाए जाते हैं, इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि, क्योंकि 2-4 साल बाद किसी को याद नहीं रहेगा, है ना. हाँ तो क्या अग्रीड हुआ सर. क्या नहीं हुआ, तो मिनट्स ही बोलेंगे आपके, और वहां आप और किसी को बुला नहीं सकते. आप ये नहीं कह सकते भाई सीओसी के इस मेंबर को बुला लो, उस मेंबर को बुला लो, ये ट्रायल नहीं है ना. वरना तो इसमें भी 60 दिन के अंदर आपको ये 6 मंथ्स के अंदर डिस्पोज ऑफ करना होता है, टाइम लिमिट है ना, कि भाई कितने टाइम में आपको ये शोकॉज नोटिस डिस्पेंस विद करना है. तो इसीलिए आरपी बोलेगा या उसके रिकॉर्ड बोलेंगे, बस सीधी सी बात है. ठीक है सर. अच्छा, ये कोविड एक्सक्लूजन पर भी एक पॉइंट आया कि भाई क्या ब्लैंकेट कोविड एक्सक्लूजन है 15 मार्च से. ठीक है. तो इसमें क्या हुआ, इट वाज रिलायंस वाज बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट लिमिटेशन ऑर्डर्स एंड एन एनसीएलटी स्टे ऑन ए प्रॉपर्टी. तो आरपी का इन क्या कहा, डिसरप्शन प्रिवेंटेड गोइंग कंसर्न सेल. तो स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी अप्रूव्ड द एक्सक्लूजन. दिस वाज पार्टली रिजेक्टेड. एससी लिमिटेशन ऑर्डर्स इनएप्लीकेबल टू लिक्विडेशन टास्क. ठीक है. ओनली द रेगुलेशन 47A लॉकडाउन पीरियड between 15/3/2020 to 31st October 2020 was allowed as auction sales actually continued. Fees was re-slotted, entitled fees reduced, and balance excess rupees 174 lakhs to be refunded. मतलब ये भी अपने को देखना है. एक बार ये ग्रुप में हम सोनल लोग वाले फिर बना दो, इधर के बना दो. एक बार ग्रुप में ये भी डाल देंगे कि जो एससी का लिमिटेशन ऑर्डर आया था वो क्या कहता है. आईबीबीआई ने क्या बोला कि एससी का जो लिमिटेशन ऑर्डर है, देखो ऐसा नहीं है कि जो लॉकडाउन पीरियड में कुछ चल ही नहीं रहा था. कई लोग क्या होता है लॉकडाउन का सहारा लेके जी कुछ भी नहीं हो रहा था, ऐसा भी कुछ नहीं है. लॉकडाउन में भी हियरिंग चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, ये थोड़ी हियरिंग नहीं हो रही थी. कोई एनसीएलटी ने काम करना बंद थोड़ी कर दिया था, वर्चुअल चलती थी फिजिकल के बजाय. तो इससे हमें क्या नॉलेज मिली
इससे ये है कि अपने को एक बार सुप्रीम कोर्ट का भी जो लिमिटेशन ऑर्डर है वो भी दोबारा से चेक कर लेना। काजल किरण जी, ये आप देख लेना, है ना, और एक बार ग्रुप में Yes, डाल sir. दो। हाँ Yes, sir. हाँ, चलिए, तो ये एक बार आप देख लीजिएगा। उसके बाद में हम दूसरी एक शेयर करते हैं पीपीटी, जो कि थोड़ी सिंपल है। ठीक है, ये तो एक्चुअल केस सिनेरियो था, लेकिन ये ऐसे केसेस भी देखने जरूरी हैं। ये मैंने ये ऑलरेडी ग्रुप में डाल रखी है मेरे हिसाब से, ये नजर आ रही होगी आपको, है ना। Yes, sir. इशू वाइज केस स्टडीज। ऐसे में हमने क्या किया कि पहले बनाई केस स्टडीज केस वाइज, फिर उसको कर दिया इशू वाइज। अब इशू वाइज में क्या है, हमने 14 जो है इश्यूज आइडेंटिफाई किए। ये 14 इश्यूज कौन कौन से हैं? एक तो प्लान गेट कीपिंग, मैं इसको इंडेक्स पढ़ने के बजाय हम सीधा साधा केस पर चलते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है कि प्लान गेट कीपिंग, RA eligibility and due diligence, the plan that slipped past the gate, a plan from an entity outside the final list of prospective resolution applicants, and a form HA signed all the same। अब होता क्या है, आपको पता है कि एक आप लिस्ट बनाते हो, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट्स की आपने फाइनल लिस्ट बना ली, है ना। तो अगर किसी दूसरे एंटिटी का प्लान आ जाए तो क्या होगा, ये उसकी बात है। ऐसा कई बार हो जाता। तो फैक्ट्स क्या है, एंटिटी एक्स फाइल्ड एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट बट मिस द डेडलाइन फॉर एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स। एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स की डेडलाइन होती है, आपको पता ही है, रेगुलेशन 40A में पूरी टाइमलाइंस डिस्क्राइब्ड है ना। और वहां पर यह भी लिखा है कि भैया अगर कोई प्लान बाद में आएगा तो वो उसको एंटरटेन नहीं करना। इट वॉज मार्क्ड इनएलिजिबल इन द प्रोविजनल लिस्ट एंड ओमिटेड फ्रॉम द फाइनल लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट। ठीक है, after the last date for plans, entity X nevertheless submitted a resolution plan with him। ये entity X कौन है? ये resolution applicant है। RP placed it before the COC। RP ने क्या कहा, उसको भी COC के सामने रख दिया, describing acceptance as the COC's commercial call। उसने कहा भाई देखो ऐसा है, आप देख लो, आपकी कमर्शियल कॉल है, इसको लेना है या नहीं लेना। ठीक है, to cure a net worth shortfall, RP invited entity X to resubmit as a consortium। अब नेटवर्थ का भी शॉर्टफॉल था उसमें, तो आरपी ने क्या कहा, आरपी ने कहा भाई आप इसको एज ए कंसोर्शियम सबमिट कर दो विद एन इंडिविजुअल प्रोमोटर लॉन्ग आफ्टर द डेडलाइन। द प्रोमोटर्स नेटवर्थ सर्टिफिकेट वाज अनडेटेड एंड कैरिड नो यूडेन। नेटवर्थ सर्टिफिकेट भी आपको मालूम है कि CSA सर्टिफाइड होता है और यूडेन होता है उसमें, है ना, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो भी नहीं था उसके ऊपर। होता क्या है, कई बार ना बैक डेट में डॉक्यूमेंट्स आप ले लेते हो, वो सबको मालूम ही है, कहने की जरूरत नहीं है ना। तो द COC ए सोल फाइनेंशियल क्रेडिटर अप्रूव्ड द, एक ही इसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर COC, it approved the consortium plan with a 100% vote। RP signed Form H certifying the plan's compliance and the applicant's eligibility। Corporate debtor was an MSME, but the RP never recorded how Section 240A applied। ठीक है, MSME था, लेकिन इस पे कोई ये रिकॉर्डिंग में नहीं आया कि भाई सेक्शन 240A कैसे अप्लाई होता है। सेक्शन 240 का अप्लाई आप सबको मालूम ही है कि सेक्शन 240 का अप्लाई क्या बोलता है, ये हमने प्री पैक में भी पढ़ा था कि भैया अगर किसी भी कंपनी की CIRP चल रही है जो कि MSME में है, तो आपको 29A C और H नहीं देखना है ना। C NPA की बात करता है और H इन्वोकेशन ऑफ गारंटी की बात करता है, ये हमने Yes, 29A में पढ़ा हुआ। तो ये दो बातें आपको चेक नहीं करनी, तो ये बातें चेक ही नहीं करनी, डॉक्यूमेंट भी करनी होती। And never examined whether the consortium partner was hit by section 29। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आ गई आपको। अब yes, आगे sir. चल, अब हुआ क्या, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके अंडर। तो एक इशू एक ही है, इसमें इशू वाइज किया है हमने। तो इशू क्या है कि बेसिकली बस मिस हो गई, बाद में उसको बस में चढ़ा लिया और आरपी ने डाल दिया COC पे, भाई COC देख लो, प्लान भी अप्रूव हो गया और सारी कहानियां हो गई, फॉर्म H भी सबमिट हो गया। उल्टा भी बाद में भी रिवर्स हो सकती है चीज। ठीक है, अब चलते हैं, क्वेश्चन क्या है। अंडर रेगुलेशन 39(1) ए रेजोल्यूशन प्लान
मे बी सबमिटेड ओनली बाय, कौन सबमिट कर सकता है? ये इसको बड़ा करना है क्या, या ठीक है? ठीक है सर। अब ठीक है, थोड़ा बेटर है ना? यस। हाँ, तो बताइए, अंडर रेगुलेशन 39(1), जो रेगुलेशन को भूल जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सोचो रेगुलेशन तो मुझे याद ही नहीं है। अब आप ये बताओ कि रेजोल्यूशन प्लान कौन सबमिट कर सकता है? ये चार ऑप्शन है। बी, अ प्रोस्पेक्टिव रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इन द फाइनल लिस्ट। हाँ, वही लग रहा है। और क्वेश्चन नंबर 2, रेगुलेशन 39(1) भी बार्स द सीओसी फ्रॉम कंसिडरिंग ए प्लान दैट इज, मतलब सीओसी किसी ऐसे प्लान को कंसिडर नहीं कर सकती। आप रेगुलेशन पे ज्यादा ध्यान मत दो। आप कभी सोचो यार रेगुलेशन तो मुझे याद ही नहीं, कोई फर्क नहीं, मुझे भी याद नहीं। ठीक है, तो सीओसी कौन से प्लान को कंसिडर नहीं करना चाहिए? सर बी, ना, बी होगा, रिसीव। है ना? यस। अगर लेट रिसीव हुआ, या किसी आदमी का नाम फाइनल लिस्ट में नहीं है, या कोई नॉन कंप्लाइंट है। ठीक है, चलिए तीसरा देखते हैं। आरपी टोल्ड द सीओसी दैट एक्सेप्टिंग द लेट प्लान वाज सीओसीज प्रेरोगेटिव। आरपी ने क्या करा? आरपी ने डाल दिया सीओसी पे, भाई तुम जानो। तो ये बात ठीक है कि नहीं? आरपी को भी कुछ दिमाग लगाना है कि नहीं, कि सब बातें सीओसी करेगी? सर डी, वोटिंग। नहीं, डी की तो बात ही नहीं आई ना भाई। सर कर बी, बी होगा सर। बी होना चाहिए। देखो, यस सर, आरपी जो रॉन्ग। है ना, आरपी तो गेट कीपर है ना। ऐसे थोड़ी चोर को भी अंदर घुसा देगा, भाई सीओसी देखेगी ये चोर है कि नहीं है। है ना? ये तो आरपी को देखना है। तो आरपी मस्ट गेट कीप अंडर सेक्शन 30 सबसेक्शन 2 एंड रेगुलेशन 39(1)(b)। मतलब जो कंप्लायंट प्लान है वही जाने चाहिए सीओसी के पास। ऐसा नहीं कोई भी कूड़ा कबाड़ा सीओसी को भेज दो, सीओसी देखती रहेगी ना, ऐसा नहीं है। अगर प्लान ही एलिजिबल नहीं है, या कंसोर्टियम में कोई पार्टनर एलिजिबल नहीं है, या वो लेट आया है, फाइनल लिस्ट में उसका नाम नहीं था, तो उसको सीओसी के पास थोड़ी भेज दोगे आप। फिर आपका क्या ड्यूटी है? ओके सर। नेक्स्ट देखते हैं। एन अनडेटेड नेटवर्क सर्टिफिकेट कैरिंग नो यूडिन एक्सेप्टेड विदाउट रिकंसिलिएशन बेस्ट शोज। भाई आपने नेटवर्क सर्टिफिकेट भी लेना होता, आपको पता है ना? तो नेटवर्क सर्टिफिकेट पे कोई यूडिन नहीं है, कोई डेट नहीं है, इसका क्या मतलब है? ऐसे ही आ गया, बाद में आ गया वो, है ना? और सी, आपने उसको फेलियर टू वेरीफाई भी नहीं एक्सरसाइज किया। ड्यू डिलिजेंस एट द इवैल्यूएशन स्टेज। सी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सी होना चाहिए। और अगले वाला है, अंडर सेक्शन 30 सब, देखो ये सारे आप कॉमन सेंस से भी आंसर कर सकते हो, इतना कोई मुश्किल नहीं है। और इसी टाइप के सवाल आते हैं। वो सेक्शन वैक्शन भूल जाओ, सेक्शन ना देगा वो, है ना, इसने दे दिया, ये तो हम सारा एआई जनरेटेड है ना? क्योंकि इतना काम हम खुद भी नहीं कर सकते। हम तो एआई को दे देते हैं कि भाई, हम उसको देते जरूर है और क्वेश्चन करते हैं उससे कि भैया ये चीज आपने देखी है नहीं देखी, इस तरह से वो है। अंडर सेक्शन 30 सबसेक्शन 2(e), the RP must confirm that a plan, सर सेक्शन बी, 30। डज नॉट contravene any provision of law for the time being in force। सही, ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, द एलिजिबिलिटी ऑफ द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अंडर सेक्शन 29(a) इज, छठा क्वेश्चन। नजर आ रहा है ना, सबको पढ़ा जा रहा है कि नहीं? हाँ। है? यस सर, यस ए, सर। ए, 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 a एलिजिबिलिटी continuing इज कंटिन्यूइंग बार, द आरपी मस्ट एग्जामिन, एलिजिबिलिटी कैन नॉट कोड, ठीक है, बिल्कुल सही। अगला देखते हैं, रेजोल्यूशन प्लान बिकम्स बाइंडिंग। सर ऑन सबमिशन ऑफ फॉर्म एच। नहीं नहीं सर नहीं, बी होगा। बी बी होना होगा चाहिए। सर। हाँ, ऑन जब अप्रूवल तक बाय द देखो, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अल्टीमेट अंडर सेक्शन डिस्क्रिप्शन तो 31। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की है ना। जब तक ऐसा भी तो ऐसा भी स्टेज हो सकती है कि सीओसी ने अप्रूव कर दिया लेकिन ए रिजेक्ट कर दे, ऐसा भी हो सकता ओके, ओके। है ना? क्योंकि अगर वो देखेगी कि भाई आरपी भी तो कई बार गलती कर देता है ना, सीओसी भी गलती कर सकती है। तो यस सर। अगर वो तो डिस्क्रिप्शन में लिखा है सेक्शन 31 में, अब वो क्या देखती है कि सेक्शन 30 सब सेक्शन 2 की रिक्वायरमेंट्स पूरी हुई कि नहीं हुई, ये सब देखती है ना।
लिखा हुआ Yes, उसमें sir. सेक्शन 31 में। अब ऐसे थोड़ी कोई भी प्लान भेज दो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एक्सेप्ट कर लेगी वो, ऐसा नहीं है। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना सेक्शन 240A एमएसएमई प्राइमरी रिलैक्सेस विच सेक्शन 29A बार्स, क्योंकि आपको पता है कि 2 बार को रिलैक्स करती है 29A सी और एच, है ना। Yes, sir. B हाँ will be the answer. Clauses C and H, NPA account and invoke personal हाँ guarantee. ये लग रहा है। और सर क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बाय साइनिंग फॉर्म एच द आरपी सर्टिफाइज अमंग अदर थिंग्स दैट, जब आप फॉर्म एच भरते हो तो क्या सर्टिफाई करते हो? Compliance certificate was the plan offers. The plan complies with the code and the applicant is eligible. हाँ तो ये देखते हो आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सीओसी कमर्शियल विजडम एक्सटेंड्स टू, सीओसी की कमर्शियल विजडम का क्या मतलब है? Sir, ये B, the feasibility, viability and financial terms of a compliant plan, not statutory compliance. तो ये आपको देख, ये हो गया, ये आंसर है, आप देख लीजिएगा, मेरे ख्याल ठीक ही लग रहे हैं, है ना। अब अगला देखते हैं, अगला इशू देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेल्फ इंटरेस्ट ओवर द एस्टेट। ठीक है, मान लो आपने अपने रिश्तेदारों को ही घुसा दिया, भाई होता है ना, आरपी प्रोफेशनल्स को अपॉइंट कर सकता है, आपको पता चला मेरा साला बेकार पड़ा है तो साले को ही अपॉइंट कर दिए, है ना। मैडम ने बोला, अरे तुम आरपी बने हो, तुम्हारा फायदा क्या है, तुम्हारा साला ऐसे ही घूम रहा है निठल्ला, इसको लगा आ दो। जा। तो खाना खाने को कुछ मत लाओ, वो है, तो ले आना। तो केस 2 कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड सेल्फ इंटरेस्ट ओवर द एस्टेट, द वैल्यूअर वाज फैमिली रिलेटेड पार्टी अपॉइंटमेंट्स एंड इंटरेस्टेड एआर एंड सीडी एसेट्स पुट टू पर्सनल यूज। ठीक है, तो क्या है देखते हैं, फैक्ट्स क्या है, एक बार पढ़ लीजिए, काजल जी पढ़ लीजिए जरा फैक्ट्स। Yes, sir. हम्म The RP engaged a valuation firm in which a close relative was a partner without disclosing the relationship to the COC and without prior COC approval. An authorized representative proposed for a creditor class was an associate of the RP's own firm. हम्म 2 occasions, the RP used the CD's guest house and vehicles for personal functions, recording them as site visits. हम्म When a creditor raised the relationship, the RP neither disclosed his interest nor recused, नॉट रिक्यूज। but continued to certify the valuation reports. हम्म No actual loss to the estate was ever proved, but the appointment and use were never placed before the COC. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कॉन्टेक्स्ट क्या Yes. है ना। तो ये सब लालच भी नहीं करने हैं। चलिए, The RP engaged. पढ़ना? ये तो पढ़ लिया हमने, है ना। Okay. चलिए, अब क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Yes, sir. इशू ये है, और ऐसे इशू आ सकते हैं एग्जाम में, है ना। तो सेक्शन 28 आपको मालूम है, सेक्शन 28 क्या बोलता है? पहला क्वेश्चन तो ये Sir, बताइए, prior, क्या sir, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन हो सकती है, यस और नो? हो सकती है सर, हो सकती with है, the prior approval of the हाँ, लेकिन प्रायर अप्रूवल चाहिए। ठीक है, तो सेक्शन 28(1) प्रायर अप्रूवल सीओसी फॉर किसके लिए? ये तो सिंपल है। every every pay नहीं, specified acts including related party हाँ यही transactions. होगा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर एक के लिए कोई जरूरी नहीं है, मैं एवरी पेमेंट के लिए बोल रहा जरूरी हूँ नहीं है। क्योंकि पेमेंट में क्या होता है कि नॉर्मली सीओसी कह देती है कि भैया अप टू ए सर्टेन लिमिट यू कैन पे ऑन योर ओन, हर पेमेंट के लिए सीओसी का अप्रूवल जरूरी नहीं है ना। वो कह देते हैं भाई देखो ऐसा है, 5 लाख की तुम्हारी लिमिट है, 5 लाख तक खुद कर सकते हो, 5 लाख से ऊपर हो तो हमसे पूछ लेना, इस तरह से होता है नॉर्मल। अवॉइडेंस एप्लीकेशंस आपको खुद ही फाइल करनी है, उसमें सीओसी का कोई रोल ही नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अगर आपको किसी को एआर अपॉइंट करना है तो एआर, आपको मालूम है एआर में भी कंडीशंस है ना, कि भाई कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। ये तो सबको ही पता है कि रिलेटिव या रिलेटेड पार्टी नहीं होना चाहिए। ठीक है, B होगा, be an associate or have a conflict with the हाँ parties present. हाँ ठीक है ना।
कई बार मन में लालच आ जाता है और कई लोग करते भी हैं ऐसा कि अपने यारों प्यारों को ही इंक्लूड कर लेते हैं, बाद में फंसते हैं फिर उसे। भाई किसी को सपना थोड़ी आ रहा है कि वो आपका रिश्तेदार है कि नहीं है कि नहीं, ये चीज। क्वेश्चन नंबर 3, वो तो आपको खुद ही सोचना है। एंगेजिंग एन इंटरेस्टेड प्रोफेशनल फर्म विदाउट डिस्क्लोजर प्रिंसिपली ब्रीचेस। So code of conduct हाँ, क्लॉज 5 5 एंड 9, independence इंडिपेंडेंस and एंड freedom from फ्रीडम conflict. फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट। अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, वो तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में बोर्ड को भी बोलते हैं। आईबीबीआई में भी आपने पढ़ा कि आईबीबीआई का भी कोई मेंबर है ना, अगर कोई डायरेक्टर है किसी चीज में इंटरेस्टेड है तो फिर उसको भी रिक्यूज कर लेना चाहिए, उसको वहां से हट जाना चाहिए। ठीक है। अब हो रहा क्या है, आपके घर में शादी है, आप देखो सीडी की सब चीजें आपके पास है, डायरेक्टर की तो पावर है नहीं। अब वहां ऑडी गाड़ी खड़ी हुई है, उसको आप पर्सनल यूज में ले रहे हो, वो चीज, और उसको आप मीटिंग दिखा रहे हो। ठीक है ना। तो यूजिंग द सीडीज गेस्ट हाउस एंड व्हीकल्स फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल फंक्शन शोज। A conflict and want of integrity in handling the state. हाँ, तो ये सब कॉमन सी बातें हैं, लेकिन ये सवाल पूछ सकता है प्रोफेशनल एथिक्स में, इसी टाइप के बेटा सवाल पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट। बेबी, ये विवेक शर्मा जी म्यूट कर लीजिए अपने को। सॉरी क्वेश्चन सर, नंबर सॉरी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 5, द करेक्ट कोर्स व्हेन ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइजेस इज टू। अगर मान लो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया तो क्या करोगे आप, क्या होना चाहिए? So disclose the interest and rescue seek COC हाँ, approval. तो यू हैव टू रिक्यूज योरसेल्फ। ठीक है, हटा दो उस बंदे को वहां से, है ना, या यू सीक सीओसी अप्रूवल। नेक्स्ट देखिए, रेगुलेशन 7(2) ऑफ द आईपी रेगुलेशंस रिक्वायर्स एन आईपी टू मेंटेन। Integrity, independence and objectivity. हाँ, ठीक है, तो ये कोड ऑफ कंडक्ट में सेल्फ इंटरेस्ट ओवर द स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड वेयर द आईपी। अब आप देख रहे होगे, आप ज्यादातर आंसर कॉमन सेंस से भी कर सकते हो, इतना कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ा कर सकते हो। Yes. तो सेल्फ इंटरेस्ट ओवर द स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड वेयर द आईपी, और 3 सवाल आने हैं आपको, एक सिचुएशन दे देंगे, उस पर 3 सवाल देंगे। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं देंगे, मैंने जानबूझ के थोड़े कॉम्प्लिकेटेड से शुरू किया, बाद में इजी पर आ गए, है ना। तो सेल्फ इंटरेस्ट ओवर द स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड वेयर द आईपी। He prefers personal gain or connection over the हाँ creditor's collective हाँ, interest. ठीक। आपको तो स्टेक होल्डर्स का इंटरेस्ट देखना है ना, अपना इंटरेस्ट थोड़ी देखना है। अच्छा, कोई एक्चुअल आप कह दो जी लॉस तो कोई हुआ नहीं है, मैंने जो भी किया उससे कोई लॉस तो हुआ नहीं। So that is not the point. Means आपको rules and regulations follow करने हैं. तो 8th में ये है कि भैया द कॉन्फ्लिक्ट अनडिस्क्लोज्ड इज इट सेल्फ ए कॉन्ट्रावेंशन वारंटिंग एक्शन। आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि नहीं था, और वो आपने डिस्क्लोज नहीं किया, तो ये खुद में ही कॉन्ट्रावेंशन है, लॉस हुआ नहीं हुआ वो बात नहीं। ठीक है। तो एन अनडिस्क्लोज कॉन्फ्लिक्ट ब्रीचेस द ड्यूटी ऑफ इंडिपेंडेंस रिगार्डलेस ऑफ प्रूवन लॉस, हार्म गोज टू ग्रेविटी नॉट टू वेदर ए ब्रीच अकर। हार्म से तो सिर्फ क्या होगा, ग्रेविटी प्रूव होगी, ये नहीं कि ब्रीच, ब्रीच तो हो गया। ठीक है, जैसे आपने रेड लाइट पार कर दी, जरूरी थोड़ी एक्सीडेंट हुआ, आपने कहा वहां ट्रैफिक तो था ही नहीं तो मैंने रेड लाइट क्रॉस कर ली, नहीं, फिर भी कॉन्ट्रावेंशन तो किया ना आपने। Contravention of rules हो गया sir, that is. हाँ, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट इशू देखते हैं, द ऑथराइजेशन फॉर असाइनमेंट एएफए, एलिजिबिलिटी एट अपॉइंटमेंट। एक बार पढ़ लीजिए के फैक्ट्स। Yes. Sir. The IP accepted a fresh CIRP assignment and filed Form 2 consent at a time when his authorization for assignment had expired and not yet been renewed. Some weeks later, they issued a show cause notice to the IP in an unrelated manner. Despite the SCN, the IP accepted a second appointment as liquidator and commenced work. The IP's defense was that he was competent, the work was done well, and the AFA was a mere formality he intended to renew. इस बंदे का एएफए एक्सपायर हो चुका है,
रिन्यू नहीं हुआ है, शो कॉज नोटिस भी आ गया है किसी दूसरे मैटर में, पर इसने फिर भी एज लिक्विडेटर अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर लिया। आपको मालूम ही है कि जब भी आप अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट करते हो तो आपको रिटर्न कम्युनिकेशन देना होता है। इवन वॉलंटरी लिक्विडेशन में भी आपको, वॉलंटरी लिक्विडेशन में ऐसा कोई फॉर्म नहीं है, आप नोटिस करोगे वॉलंटरी लिक्विडेशन में कोई रिटर्न कम्युनिकेशन का फॉर्म अलग से नहीं है, लेकिन फिर भी आपको फॉर्म देना है। और टर्म्स ऑफ अपॉइंटमेंट बल्कि उल्टा होता है। लिक्विड होता क्या है प्रैक्टिकली, कैसे होता है प्रैक्टिकली? तो एक कंपनी आपसे कहती है भैया लेट अस गो इन फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन, आप आईपी हो, आपको तो पूरी नॉलेज है, वो आपसे ही सारे ड्राफ्ट मांगते हैं, है कि नहीं? तो उस केस में क्या होता है कि आपको ही सारी चीजें ड्राफ्ट करके देनी है उनको। whom he has to communicate. तो आईपी डिफेंस वाज दैट ही वाज कॉम्पिटेंट, और कहा मैं तो कॉम्पिटेंट हूँ, काम भी हो गया, ये फिर तो फॉर्मेलिटी है सिर्फ, है ना? चलिए, ये हो ही गया। अब पहली बात कि एएफए आपका कब वैलिड होना चाहिए। तो जब भी आप कोई असाइनमेंट शुरू करो उस टाइम आपका वैलिड एएफए होना चाहिए। अगर आपके बात पास वैलिड एएफए नहीं है तो आप असाइनमेंट शुरू ही नहीं कर सकते, ठीक है? और एएफए कब सस्पेंड हो जाएगा, सेकंड क्वेश्चन। ऑन इश्यू ऑफ ए शो कॉज नोटिस, अभी हमने शोकॉज किसी नोटिस दूसरे वैलिड हो। कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था कि जैसे ही आपको एससीएन इश्यू होता है तो आपका एएफए सस्पेंड हो जाता है। तीसरा, अगर आपने कोई असाइनमेंट एक्सेप्ट कर लिया विदाउट वैलिड एएफए तो क्या होगा? इट कॉन्ट्रवीन्स ये रेगुलेटरी प्रेवेंशन। कॉन्ट्रावेंशन हो जाएगा। कंपिटेंस का कोई इशू इसमें नहीं है, ठीक है? और ए वैलिड एएफए को क्या कह सकते हैं? वैलिड एएफए इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, A condition precedent that must exist at the time of appointment. हाँ ये क्वेश्चन नंबर 5, एक्सेप्टिंग द लिक्विडेटर अपॉइंटमेंट आफ्टर द एससीएन प्रिंसिपली शोज। भाई आपको एससीएन इशू हो चुका है फिर भी आप असाइनमेंट एक्सेप्ट कर ले हो तो इसका क्या मतलब है? Sorry, ineligibility हाँ at तो a भाई इलिजिबल हो आप, है ना? एएफए को भी सस्पेंडेड है आपका। एएफए इज ए मियर फॉर्मेलिटी, आई मेंट टू रिन्यू इज नो डिफेंस, no defense. एलिजिबिलिटी इज अ स्ट्रिक्ट कंडीशन नॉट एन इंटेंशन। ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी है आप करो, मर्जी है ना, ठीक है? तो ये आंसर्स हैं। उसके बाद में अगला इशू देखते हैं, कस्टडी कंट्रोल प्रिजर्वेशन एंड यूज ऑफ सीडी एसेट्स। देखो जितना मटेरियल मैं दे दूंगा ना Yes, केस स्टडीज पे। I have a question. यस प्लीज। This he has to communicate to adjudicating authority or to whom it is actually? Now this AFA is granted by IPA only, IPA. Insolvency Professional Agency, and within Uh-huh. 1 day of issue of AFA or suspension etc., they have to inform the IPPA. We Acha. have already covered it in IP regulations. IPA regulations we have covered. Actually, this AFA is being granted by the IPA. जैसे आपको सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है? इंस्टीट्यूट से मिलता है ना? वही Okay, okay. वही सेम सेम रूल। द की इज नेवर हैंडेड ओवर। तो एक बार पढ़ लीजिए केसेस क्या है। एमबीएस कुमार जी आप पढ़िए केसेस क्या है। On admission, the IRP did not take physical custody of the CD's plant. The erstwhile management continued to operate and use the premises and vehicles. The IRP read a tribunal order saying no further corrective steps against the IP as barring HM, barring him from taking custody, and so took no steps. A security creditor began enforcing security over CD machinery during the moratorium. The IRP did not object or move the adjudicating authority.
Quote, a status quo order on a disputed parcel of land was read by the IRP as freezing all his custody functions over every asset of the CD. The CD was under a going concern direction, but production drifted to a halt for want of control. अब होता क्या है, तो भाई आपको तो कस्टडी इन कंट्रोल लेना है। अगर आप कस्टडी इन कंट्रोल नहीं लेते तो क्या होगा? ठीक है, और मान लीजिए कोई डिस्प्यूटेड है लैंड। अब डिस्प्यूटेड लैंड में ऑर्डर का कोई कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि भाई वहां पर स्टेटस को मेंटेन करो आप। तो ये तो नहीं ना कि आप बाकी कुछ भी मत करो, ठीक है ना। अगर किसी पर्टिकुलर इश्यू में कई बार होता है कि कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है कि भाई यहाँ पर आप स्टेटस को मेंटेन करोगे, तो उस पॉइंट पर आप चल लो मत लो, लेकिन बाकी तो करो ना आप। अगर कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर, अब मॉरिटोरियम तो चल रहा है, जब मॉरिटोरियम चल रहा है और सिक्योर्ड क्रेडिटर कोई एक्शन ले रहा है, आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहे उसको, ना ही आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को मूव कर रहे हैं, तो ये क्या मतलब? बेसिकली इस टाइप की कस्टडी एंड कंट्रोल इश्यू पर है ये, ठीक है। और मॉरिटोरियम में आपको क्या एक्शन लेना है और नहीं, तो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ये हो ही गया। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब सेक्शन 18F क्या बोलता है? सेक्शन 18F आपको मालूम ही है। सेक्शन 18F क्या है? ये ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। सेक्शन 18 और 25 दोनों ही मेरे ख्याल एक IRP का होगा, एक RP का होगा, है ना, ऐसा ही लग रहा है मेरे को। हाँ सर, ये IRP का 18 है और 25 है उसका सर RP का। हाँ वही है, दोनों ही भाई भाई है। चलिए, हाँ, तो क्या करना है, क्या करना चाहिए पहले क्वेश्चन में? सर B होगा, टेक कंट्रोल एंड कस्टडी ऑफ हाँ, द तो यू शुड टेक कंट्रोल एंड कस्टडी ऑफ द CD। सेकेंड है मॉरिटोरियम में क्या होता है? मोरेटोरियम अंडर सेक्शन 14 B, बार, B, हाँ, enforcement of एनफोर्समेंट ऑफ security सिक्योरिटी interest इंटरेस्ट, and सूट्स एंड recovery. रिकवरी अगेंस्ट द CD। वेरी गुड। नंबर 3, एन ऑर्डर सेइंग नो फर्दर कोएर्सिव स्टेप्स अगेंस्ट द IP। एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। वैसे तो बी होगा इसका आंसर, लेकिन हम्म इसमें क्या बोलता है? वो बोलता है IRP रेड ए ट्रिब्यूनल ऑर्डर सेइंग नो फर्दर कोएर्सिव स्टेप्स अगेंस्ट द IP as barring him from taking custody and so took no steps। मतलब वो IRP ने बोला ऐसा है जी, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर है कि भाई नो फर्दर कोएर्सिव स्टेप्स अगेंस्ट द IP, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी आपको कस्टडी इन कंट्रोल तो लेना ही लेना, ठीक है। तो इट डज नॉट रिलीव द IRP ऑफ द स्टैट्यूटरी ड्यूटी टू टेक कस्टडी ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट। अच्छा, इसके साथ ही एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि सपोज यू गो टू टेक कस्टडी इन कंट्रोल, मैनेजमेंट का कोई बंदा ही नहीं है वहां पर, तो क्या करोगे आप गए कंपनी में कस्टडी इन कंट्रोल लेने, पता चला डायरेक्टर तो फॉरेन कंट्री भाग गए हैं, वो तो फ्रॉड थे, करके भाग गए वहां सर एक। NCLT को इन्फॉर्म करेंगे। नो सर, ना 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 ना, NCLT का क्या काम है उसमें? सर 2 विटनेस के साथ खुद ही लेंगे हाँ, 2 विटनेसेस लोगे और जो भी है आप उसको बनाओगे, जैसे पंचनामा बनाते हो क्या क्या है वहां पर, और फिर किसी एम्प्लॉय की ड्यूटी लगा दो, भाई देखो इस चीज को आपको टेक केयर करना। ऑन द ओके, इंसॉल्वेंसी मैनेज, आपको एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास तो जाना ही नहीं है, बहुत एक्सेप्शंस केस में जाना है, वरना वो भी झाड़ मारते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी भी। तो भाई आप कुछ ओके, खुद भी तो कुछ करो, कि सीधा हमारे पास ही आ जाओगे, हमारे में पहले ही बहुत काम पड़े। अच्छा, ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट मैनेजमेंट ऑफ द CD वेस्ट इन, दी IRP। हाँ, तो IRP में जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने सिक्योर्ड क्रेडिटर एनफोर्सेस सिक्योरिटी। अब कोई अपनी सिक्योर्ड क्रेडिटर है वो एनफोर्स कर रहा है ड्यूरिंग मॉरिटोरियम, तो RP को क्या करना है? तो पहले तो ही टू रेज द ऑब्जेक्शन, ठीक है, एंड देन इफ ही डजंट कंप्लाई देन ही कैन मूव टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अलोंग विद प्रूफ। देखो जी, मैंने तो इसको नोटिस दिया था, मैंने तो इसको कहा था, वार्न किया था कि भाई यू कैन नॉट टेक एनी एक्शन ड्यूरिंग मॉरिटोरियम पीरियड। B will be the answer, sir. Object and move the हाँ, object. नेक्स्ट देखिए, स्टेटस को
ऑर्डर ओवर वन डिस्प्यूटेड पार्सल, मान लीजिए कोई पार्सल ऑफ लैंड है, उस पर कोई डिस्प्यूट स्टेटस को ऑर्डर आ गया कोर्ट का, तो ये थोड़ी सारा ही काम आप बंद कर दोगे, है ना। वहां पर जहां स्टेटस को ऑर्डर है ठीक है, बाकी तो आप करो, ये थोड़ी कि आप कुछ भी नहीं करोगे। तो इट इज कन्फाइंड टू दैट पार्सल ओनली, कस्टडी ऑफ अदर एसेट्स कंटिन्यूज। A going concern direction requires the RP to keep the CD operating and The preserve. operating and deserve its value. हाँ हाँ B. ठीक है, बिल्कुल सही। फेलिंग टू टेक कस्टडी while pleading a misread stay is no defense, है ना। The custody duty is statutory and the order was misconstrued. D will be the Allowing erstwhile management to keep using CD premises and vehicles, अब आप उसको अलाउ कर रहे हो। नॉर्मली तो क्या होता है, जैसे D. हमारे यार दोस्त जाते हैं कस्टडी लेने, अब वो डायरेक्टर को बोल देते हैं भाई देखो गाड़ी की चाबी हमें दे दो, आगे नहीं, अब आप अपना ओला उबर से चले जाना, क्योंकि वो कंपनी के नाम में गाड़ियां होती हैं, डायरेक्टर की पर्सनल तो होती नहीं, है ही नहीं। तो अगर आप सीडी को अलाउ करते हो कि प्रेमिसेस को यूज करो या व्हीकल्स को यूज करो, तो breaches the duty to take control हाँ, and लेकिन ये भी नहीं है कि आपने ऑडी ले ली और अपनी फैमिली को घुमा रहे हो उसमें, वो भी नहीं है ना। तो दोनों ही बातों का ध्यान में रखना। ये भी हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अवॉइडेंस एप्लीकेशन दैट वाज नेवर फाइल्ड, कई बार क्या होता है कि आपने पीयूएफई ट्रांजैक्शंस की एप्लीकेशन ही फाइल नहीं की, तो क्या होगा उसमें। एक बार पढ़ लीजिए फैक्ट्स, लेट अस रीड द फैक्ट फर्स्ट। yes sir. अब होता D. क्या है, कई बार ना आप फोरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट करते हो, है ना, ट्रांजैक्शन ऑडिटर अपॉइंट करते हो। तो आपने ट्रांजैक्शन ऑडिटर अपॉइंट किया, उसने फ्लैग भी किया कि भाई ये है, पढ़ लीजिए एक बार। The transaction auditor flagged preferential payments to a related party and an undervalued asset transfer in the look-back period. The RP formed a no opinion within the Regulation 35A timelines and filed no avoidance application. When pressed, the RP said the COC had not approved filing and that he was awaiting its adoption of the audit report. By the time a successor addressed it, in limitation and evidentiary difficulties had set in. ठीक है जी। तो ये आपको मालूम ही है कि पीरियड है 75, 115, 130 डेज करना ही है आपको, और अगर ट्रांजैक्शन ऑडिटर ने बताया तो जरूरी करना है। एक तो आप सीओसी पे नहीं डाल सकते, ये बेटर, सीओसी का कोई रोल ही नहीं है इसमें, ये आपको खुद ही करना है, आपको सीओसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है इसमें। सिर्फ इशू कहाँ आता है, क्योंकि सीओसी तो कॉस्ट तो अप्रूव सीओसी करेगी, है ना। जो ट्रांजैक्शन ऑडिटर है उसकी फीस कौन देगा, फीस तो सीओसी को देनी है। तो आपको बेसिकली जो अपॉइंटमेंट है वो, खासतौर से स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी में तो इतना इशू नहीं आता, क्योंकि वहां पर क्या है, स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी में तो जब आप अपॉइंट करते हो तो वहीं पर रेगुलेशन 31 ए है ऑफ लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस, तो वहां पर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स में भी एससीसी के रिकमेंडेशन चलती है। जहां तक सीओ इसकी सीआईआरपी की बात है, तो सीआईआरपी में सेक्शन 28 इसके बारे में कुछ बोलता है ना। भाई कुछ कुछ केसेस में आपको सेक्शन 28 के हिसाब से चलना है, बाकी में आरपी को अपना माइंड। यस प्लीज, यू आर आस्किंग समथिंग, पूछ रहे थे कुछ हम। सर आई सेड 39D में भी तो फीस बताते हैं सर, है 39D में सर, सेक्शन 39D हाँ, फीस, सर फीस के बारे में बता रही। 39D कौन सा सेक्शन, 39D है ना सर शायद, वो तो रेगुलेशन है ना, रेगुलेशन की बात कर रहे हो क्या आप। यस सर, रेगुलेशन तो सीआईआरपी का है 39D में। हाँ हाँ रेगुलेशन, वही मैं कहा सेक्शन तो नहीं, रेगुलेशन, हाँ बिल्कुल ठीक। हाँ ठीक है जी, तो ये देख ही सकते हैं आप, ये देख लीजिएगा, खास बात नहीं है। थोड़ा इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं। अगला ये देखिए जरा, वो तो क्वेश्चन भी दे रखे हैं हमने, आंसर भी दे रखे हैं, है ना। तो सारे Yes, आप पढ़ लोगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कम से कम Yes, sir. इन पॉइंट्स पर अगर एग्जाम में पूछे तो आपको जरूर आंसर कर देना चाहिए। यस सर। पढ़ लीजिए एक बारी। The RP delayed constituting the COC beyond the verification of claims, treating it as a discretionary step.
on an agenda replace the RP, more than 50% of the home buyer class who voted favored replacement. The AR cast the class's vote अगेंस्ट इट. sorry, against it, uh, citing the 66% threshold in Section 27. The RP closed the e-voting window early before the prescribed minimum period had elapsed. Members holding 33% of voting share asked the RP to table an agenda item. He declined to circulate it. सेक्शन Section 12 भी 12 withdrawn. placed for decision with a simple majority rather than the required threshold. तो क्या होता है, परसेंटेजेस डिस्क्राइब्ड है. ठीक है, आपको सीओसी भी कॉन्स्टिट्यूट करनी है विद इन 7 days ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स. या अगर AR है तो 2 दिन और ले लो आप. विद इन 30 days यू हैव टू कॉन्स्टिट्यूट द सीओसी. ठीक है, तो इफ यू डिले कॉन्स्टिट्यूसिंग द सीओसी कि भाई ये तो हमारा डिस्क्रिशनरी स्टेप है, ऐसा कुछ नहीं. सेकंड क्या होता है, आपने सेक्शन 25(3)(a) पढ़ा है. 25(a)(3)(a) है ना. 25(a)(3)(a) क्या बोलता है कि मोर देन 50% मीन्स इन केस ऑफ ये मतलब 100%. हाँ, यस सर. तो इसने क्या कहा, इसने कहा भैया ये 66 होना चाहिए. और मोर देन 50 के बाद भी उसने क्या किया, उसने AR कास्ट द क्लास वोट अगेंस्ट इट. ठीक है, यस अगर सर. आप ई वोटिंग विंडो अर्ली क्लोज कर देते हो, आपको 33% मेंबर्स बोलते हैं कि भैया कोई एजेंडा आइटम प्लेस करो, आप नहीं सर्कुलेट करते. तो ये सारी चीज मतलब अगर आप जो भी परसेंटेजेस दे रखी हैं वो फॉलो आप नहीं कर रहे, तो यस सर. उसके ये चीज. यस. तो कॉन्स्टिट्यूटिंग द सीओसी इज ए मैंडेटरी स्टेप, नॉट Mandatory, not है ना, mandatory. अपनी मर्जी नहीं है. हाँ अच्छा, अंडर 25(a)(3)(a) the AR must cast the class vote in accordance with. A decision of more than 50% of the class voting share who have cast their vote. हाँ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये हमने कवर भी किया था. 25(a)(3) क्या बोलता है, 25(a)(3) बोलता है कि अगर कहीं क्लास ऑफ क्रेडिटर्स है, ठीक है, तो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स में आपको क्या देखना है कि अगर मोर देन 50%, जैसे मान लीजिए 5,000 होम बायर्स हैं, 5,000 होम बायर्स में से 3,000 ने वोट किया. ठीक है, और 3,000 में से मान लीजिए 2,500 ने कहा फेवर में हम रेजोल्यूशन. ठीक है, इसका क्या मतलब माना जाएगा, इसका मतलब माना जाएगा कि पहले तो आपको 2,500 डिवाइडेड बाय 3,000 करना. कास्ट देयर वोट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. लेकिन अगर उसमें मोर देन 50% आ रहा है तो इसका मतलब मान लिया जाएगा कि 100% उस रेजोल्यूशन की फेवर में है. मतलब 5,000 के 5,000 जो होम बायर्स हैं वो उसके फेवर में, क्योंकि वहां पर क्लास ऑफ क्रेडिटर्स तो आते नहीं है, वहां तो एक AR आएगा, है ना. अब AR को भी तो अपना दिमाग लगाना है ना. तो AR ने कैसे करना है, AR ये कहेगा कि भैया एक तो इंस्ट्रक्शंस फाइल करता है वो कि किसने क्या कहा. ठीक है, और फिर अगर मोर देन 50% ने जो भी जिन्होंने कास्ट वोट कास्ट किया है अगर वो फेवर में है तो 100%, इट मीन 100% इन फेवर. ठीक है, सेक्शन 25(a)(3) है, बहुत क्लियर है इसके ऊपर. सॉरी टू इंटरप्ट यू, मतलब हम जितने लोगों ने वोट कास्ट किया उसके बेस पे परसेंटेज निकालना है हमें, ये क्या है? हाँ बिल्कुल, लिखा हुआ है वो हैव कास्ट देयर वोट. ठीक है सर, थैंक यू. अगर आप वो देखोगे तो उसमें हमने उसको हाईलाइट किया हुआ है, उस पॉइंट को बोल्ड किया हुआ है. वो बोल्ड इसीलिए किया हुआ है कि ये नहीं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, 5,000 में से 3,000 ने वोट किया, 2,000 ने वोट ही नहीं किया होगा, मरने हमें क्या मतलब. 3,000 में से 2,500 ने फेवर में वोट कर तो दिया. वो 2,000 जिन्होंने किया वो हमारे डिनोमिनेटर दोनों से गायब हो जाएंगे. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. हाँ, थ्रेशोल्ड टू रिप्लेस द RP अंडर सेक्शन 27 कितना है, बी ये तो 66. 66% है. ठीक है, वेरी गुड. वेयर द क्लास मेजोरिटी फेवर्ड रिप्लेसमेंट द AR वोटिंग अगेंस्ट. भाई क्लास मेजोरिटी ने तो रिप्लेसमेंट को फेवर किया. सर ब्रीच्ड हो जाएगा, ब्रीच्ड अंडर हाँ सेक्शन हाँ. which binds him to हम्म. 50% class decision.
अब देखिए, दो जो 33% है ना, इसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है ना। 33% क्या है कि कोई भी एजेंडा आइटम प्लेस करना है, कोई मीटिंग कन्वीन करनी है, दोनों के लिए अगर 33% ने कह दिया तो उसको करनी है, मैंडेटरी करनी है। ठीक है। यस सर, बी पॉइंट। हाँ। नेक्स्ट पॉइंट है क्लोजिंग द ई वोटिंग विंडो बिफोर द प्रेस्क्राइब मिनिमम। भाई आपने लिखा हुआ है वहां 24 आवर्स आपको वोटिंग विंडो ओपन रखनी है, आप उसे पहले ही क्लोज कर दो। बी। हाँ, ये तो इट इज contradiction. ऑल्सो ए कॉन्ट्रावेंशन। Yes, sir. ए विड्रॉल ऑफ सीआईआरपी अंडर सेक्शन 12 रिक्वायर्स, तो सिंपल ही है, 90% आपको चाहिए। बी। ठीक है। Percent. हाँ। डिलेइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सीओसी एज डिस्क्रिशनरी, इट इज ए, बी। हाँ इट इज ए कॉन्ट्रावेंशन। नेक्स्ट देखते हैं क्रेडिटर्स लेफ्ट इन द डार्क, नोटिस, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी टू क्रेडिटर्स। और आप ये ध्यान में रखना कि ये सारे भी आईबीवीआई के डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म से ही निकाल रखे हैं ये पॉइंट्स, है कि नहीं। पहले सारे केसेस स्टडी किए, केसेस स्टडी करने के बाद में फिर उसमें कॉमन पॉइंट ढूंढ के ये 14 कॉमन पॉइंट्स मिले उसको। तो नोटिस, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी टू क्रेडिटर्स, 10% लाइन फॉर ऑपरेशनल क्रेडिटर्स एंड लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स नेवर पब्लिश्ड। अब होता है ना कि 10% भी है, 10% का क्या रोल है ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का। इफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कॉन्स्टिट्यूट 10% और मोर, तो क्या होता है उस केस में, क्या करना है आपको, आरपी को क्या करना है। तो क्वेश्चन एक बार फिर से समझ में नहीं आया सर। नहीं, क्वेश्चन इज दैट इफ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कॉन्स्टिट्यूट 10% और मोर ऑफ द डेट, ऑफ द टोटल डेट, then what is the duty of the RP regarding these operational creditors? So one representative of operational creditors. Yes, so he has to be invited to the meetings, but of Meeting. course he will not have any right of representation or voting, right? Yes. But he will be invited. So 10% is an important threshold. ठीक, तो इस केस में क्या हुआ पढ़ लीजिए एक बार जरा। Yes, sir. Operational creditors whose dues in the aggregate exceeded 10% of total debt were not given notice of COC meetings. The RP did not display the list of creditors on the CD's website or file the updated list with the adjudicating authority. Scale developments, including receipt of plans and key timelines, were not communicated to creditors who had filed claims. When an OC complained, the RP said operational creditors have no vote, so notice is pointless. उन्होंने कहा भाई तुमने वोट तो करना नहीं है, तुम आगे करोगे भी क्या मीटिंग में, है कि नहीं। तो ये कहा, और आपको जो लिस्ट है वो भी सीडी की वेबसाइट पे भी लगानी है और आपको फाइल भी करनी है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास। और अगर कोई चेंज होगा उसमें तो चेंज भी आपको नोटिफाई करना है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को विद इन कितना देर है, 2 days है। अगर कोई चेंज होता है लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स में तो उसका इंटीमेशन कितने दिन में जाना चाहिए, 2 days ही है सर। है ना। मेरे ख्याल सेक्शन 21 में लिखा होगा। हाँ यस। रिपोर्ट करना और 2 days का इंटीमेशन है सर, वो वेरिफिकेशन। आपको पढ़ा पढ़ा के मुझे भी याद होगा धीरे धीरे। चलो जी, अगला देखते हैं। Under section 24(3)(c), operational creditors or their representatives are entitled to notice of COC meetings where their aggregate dues are not less than 10% of the total debt. अब इसमें ना वो क्या करेगा, वो ऐसे ऑप्शन नहीं देगा आपको, वो एग्जाम में सारी 10% वाली दे देगा। उसको पता है 10% तो आपको मालूम है, एक में दे देगा मोर देन 10% ऑफ द टोटल डेट, एक में दे देगा नॉट लेस देन 10% ऑफ द टोटल डेट, है ना, इस तरह से। तो अगर और एक में दे देगा 10% और मोर, तो 10% अगर एग्जैक्ट हुआ तो क्या होगा, तो देना नोटिस, नहीं देना। भाई अगर एग्जैक्ट 10% है, एग्जैक्ट भी तो हो सकता है ना, एग्जैक्ट पर मोर देना है देन नहीं देना। 10%। आई तक तो नो सर, नहीं Not देना, मोर देन 10 पे देना है। ना 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 नहीं, बिल्कुल देना है।
10%, तो ये 10 तो पे वहां कंफ्यूज करता है वो। क्या लिखा है वहां? आप सेक्शन 24(3)(c) पढ़ लो। नॉट लेस देन 10%, वर्डिंग क्या लिखी है वहां? नॉट लेस देन 10। नॉट लेस देन 10 का मतलब क्या हो गया? अगर 10 एग्जैक्ट है तो होगा ना, मैं तो। इंक्लूडिंग 10 होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। ऐसे पूछ लेता है वो सवाल, क्योंकि बंदा वहां पर चक्कर खा जाता है, सोचता है यार गलत ना हो जाए कहीं, छोड़ दो ये चीज। नॉट लेस। तो एक एक वर्ड हमें ध्यान से पढ़ना है, और उसी पे वो प्ले करता है। इसको पता है, उसको भी पता है कि 10% तो हर एक को मालूम ही है। अब 10% के अंदर ही वो खेल करता है। सर सॉरी टू इंटरप्ट सर, ऐसा कोई मतलब एक मोटा मोटा कि आईबीसी में ज्यादातर जगह मोर देन 10% ही है, मोर देन 20% ही है, हम याद रख पाए रफली? क्यों नहीं याद रख पाएगा? अरे भैया जब 4-5 बार पढ़ोगे सब याद, ध्यान में रहेगा। ओके सर, ओके ओके। अरे कल को आप आरपी बन जाओगे तो भी तो चाहिए होगा ये सब चीजें। ओके सर, थैंक यू क्यों? सर। यस सर। 10% टेस्ट फॉर, और ये तो कुछ भी नहीं है, एग्जाम पास करना बहुत आसान है। एग्जाम के बाद में जो है ना वो रियल टेस्ट तो वहां पर होता है, कि वहां तो दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज आती हैं, हर कोई आपकी जान के पीछे लगा हुआ है। ये बात है, वो तो बहुत मुश्किल काम है। द 10% टेस्ट फॉर ओसी नोटिस इज अप्लाइड ऑन द एग्रीगेट, है ना, ऑन द एग्रीगेट हम्म ऑफ ऑपरेशनल। ऑन द एग्रीगेट ऑफ हाँ, ऑपरेशनल डेट। ओसीज हैव नो वोट, सो नोटिस इज पॉइंटलेस इज रॉन्ग, है ना। सीओसी, रॉन्ग। ओसीज हैव a right to attend or notice even without a vote. Under Regulation 13(2)(a) and D, the RP must बी ओ। file or display the list of creditors and keep it updated. और उसको अगर कोई वेबसाइट है सीडी की वहां पर भी दिखानी है, और उसके अलावा आईबीपीआई को भी, आईबीपीआई को नहीं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी इन्फॉर्म करना है, और कोई चेंज होती है तब भी। तो बाकी देख लीजिएगा, अगला देखते हैं, अगला केस देखते हैं। ये क्लेम्स, क्लेम्स के ऊपर भी कई बार पॉइंट आ जाता है। क्लेम्स में क्या है? कोलेशन, वेरिफिकेशन एंड क्वांटम। ठीक है। An inflated relative party claim admitted, a genuine claim cut without basis। कई बार क्या होता है, जो आपकी जानबूझ, जो आपकी जान पहचान की पार्टी है, उसका तो आप एक्स्ट्रा क्लेम भी एडमिट कर लेते हो, और कोई जेन्युइन क्लेम है उसको काट पीट देते हो आप। ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ? रिलेटेड पार्टी फाइल्ड अ क्लेम दैट वाज विजिबली इन्फ्लेटेड एंड पुअरली डॉक्यूमेंटेड। भाई आरपी का डिस्क्रिप्शन है ना, आरपी एडमिटेड द फुल अमाउंट विदाउट वेरिफिकेशन। A genuine operational creditors well documented claim was reduced by the RP without recording any reason. RP's explanation was that he went by the figures filed and that quantum was for the AA to decide. ठीक है। तो आरपी कोर ड्यूटी ऑन क्लेम्स, क्या कोर ड्यूटी है? सर बी। हाँ And verify claims on their हाँ। merits. तो रेगुलेशन 14 डील्स विद, रेगुलेशन नंबर पर तो सवाल नहीं पूछेगा वो नॉर्मली, और इतना याद भी नहीं रह सकता किसी को। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस देख लीजिएगा आप, Yes. या सीधा आप, अगर आप और टाइम सेव करना चाहो तो सीधे आंसर्स पर जा सकते हो, तो आंसर से भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रीजनिंग भी दे रखी है। ठीक है। Yes. अब अगला इसमें क्या हुआ भाई? अब जैसे आप लिक्विडेटर बन जाते हो, बैंक अकाउंट भी आप ही मेंटेन करते हो, है ना। तो इस केस में क्या हुआ? द आरपी ड्रू हिज फिगर, हिज फीस एट ए फिगर ही सेट हिमसेल्फ विदाउट द सीओसी फिक्सिंग इट अंडर रेगुलेशन 34। On liquidation, the liquidator claimed fees on a presumptive basis for a period after 30th June outside Regulation 42. A one-time settlement payout negotiated with the lender was booked by the RP as CIRP cost. ठीक है। The IP made no disclosure of fees or cost to his insolvency professional agency as required by Regulation 34। तो ये सारी इंफ्रैक्शंस हैं रिगार्डिंग फीस। ठीक है। आप जो भी फीस लेते हो उसका भी डिस्क्लोजर चाहिए, है ना।
हम्म। अब अगर आप मान लो किसी लेंडर के साथ में वन टाइम सेटलमेंट कर लेते हो तो वो सीआईआरपी कॉस्ट का पार्ट नहीं है ना? तो बुकिंग ए वन टाइम सेटलमेंट पेमेंट पे आउट टू ए लेंडर एज सीआईआरपी कॉस्ट इज impermissible and OTS payout is not a CIRP cost. Auction rerun on a typing error. इस केस में क्या हुआ? एनी ऑक्शन कंक्लूडेड विद ए क्लियर हाईएस्ट बिड, है ना? तो एक ऑक्शन हुई, हाईएस्ट बिडर आया, क्लियर था बिल्कुल, अब दोबारा ऑक्शन कर दी. द लिक्विडेटर देन रीरैन द ऑक्शन citing a typing error in the notice that surfaced only after the result. EMD was refunded to a favorable bidder in a manner inconsistent with the auction terms, while a status quo order was enforced over part of the estate. Conditions and short notice between rounds thinned participation in the rerun. ठीक है, आपने कंडीशन ज्यादा लगा दी, टाइम कम दे दिया ताकि ज्यादा पार्टिसिपेट कर ही ना सके. तो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स अंडर रेगुलेशन 15 वर फाइल डेट एंड द लिक्विडेशन ओवर एंड द रेगुलेशन 44 टाइमलाइन विदाउट ए टाइमली एक्सटेंशन एप्लीकेशन. तो ये थोड़े से इसमें लिक्विडेशन से रिलेटेड इश्यूज है. द रिकॉर्ड्स दैट वर नेवर केप्ट. अब आपने रिकॉर्ड ही रखे. द आईपी डिड नॉट प्रिजर्व द असाइनमेंट्स रिकॉर्ड फॉर द पीरियड प्रेस्क्राइब्ड बाय द आईबीबीआई. भाई आपको पीरियड प्रेस्क्राइब किया हुआ 3 years और 8 years. ठीक है. Statutory CIRP forms including CIRP2 and CIRP6 were not filed or were filed well out of time. No report under regulation 17(1) certifying constitution of the COC was filed. List of creditors was neither updated nor displayed and e-voting records were not maintained. तो एक बार सारे ये आप देख लीजिएगा. ठीक है, ये इश्यूज को आप पढ़ लीजिएगा और इस पर आप अपने कमेंट्स भी उसमें दे सकते हैं कि हम और इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, 1 मिनट बस, मैं एक लास्ट में आपको एक और कुछ दिखाना चाह रहा था. ये इश्यूज हो गए हमारे. अच्छा, एक और प्रोफेशनल एथिक्स पर है, वो एक मिनट देखता हूँ. ये भी कुछ डिसिप्लिनरी केसेस. इसमें 4 सेट्स हैं अलग अलग. आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल. इज इट विजिबल? Yes. है ना? तो मैं शेयर कर दूंगा. इसमें भी क्या है, सेक्शन वाइज हमने किया हुआ कि Yes, एडमिशन sir. ऑफ सीआईआरपी, है ना? तो वो देख लीजिएगा, सेक्शन वाइज इसमें बहुत सारे रेगुलेशंस हैं. तो आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. Yes, sir. जैसे नॉन शॉर्ट लिस्टेड रेजोल्यूशन प्लान, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स वोट, नोटिस टू ऑपरेशनल क्रेडिटर्स, कॉस्ट डिस्क्लोजर, अवॉइडेंस एप्लीकेशंस, एक्टिंग विदाउट वैलिड सीएफए, है ना? इससे क्या होगा, इससे ना आपको दोनों तरह से सही रहेगा. एक कि आपकी जो सीआईआरपी या लिक्विडेशन वाली केस स्टडीज है उसमें भी हेल्प मिलेगी आपको, है ना? Yes, sir. कुछ इसमें ओवरलैपिंग भी हो सकती है, आपको लगेगा कि शायद ये पहले भी पढ़ लिया है, तो आप देख लीजिएगा इसको भी, है ना? तो इसमें क्वेश्चन भी दे रखे हैं और आंसर्स भी दे रखे हैं.
इसमें फैमिली वेडिंग कर ली कॉर्पोरेट डेटर के रिसोर्ट पे, इस टाइप के इश्यूज आ जाते हैं। टेकिंग असाइनमेंट्स, ये तो कुछ हमने कर भी लिया इसमें से। सर रियल लाइफ में तो ये बहुत चैलेंजिंग होता होगा ना। अब वो तो है ही। तो भाई करोड़ों रुपए ऐसे ही थोड़ी मिल जाएंगे आपको। अच्छा। भाई अगर मान लो किसी काम के आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो उसमें फिर एफर्ट तो रहेगा ही ना। ऐसे तो नहीं होगा कि वैसे ही नहीं, मिल जाएंगे आपको। नहीं सर, मतलब बहुत रिस्क भी है and बहुत माइन्यूट माइन्यूट डिटेल्स को भी याद रखना, एवरीथिंग के। नहीं, वो तो फिर टीम होती है ना आपके पास। देखो अगर स्टेक्स हाई हो, ऐसा है कुछ तो कंपनी ऐसी होती है जिसमें कुछ जान ही नहीं है ना। हाँ जी। मान लो उसमें कुछ है ही नहीं, फिर तो बात ही अलग है। लेकिन हम्म। अगर जो है कंपनी में जान है, तो फिर तो आपको देखना ही पड़ेगा ना। भाई हम्म। एक तो ये है कि 2 करोड़ की कंपनी, एक है 2,000 करोड़ की कंपनी, तो फिर अलग अलग तो होगा ही नेचुरली उसमें। हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे सर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अपना काम कीजिए बस। हाँ, काम कीजिए और मतलब सही इंटेंशन से काम कीजिए। नहीं सर, वो सर काम तो सही इंटेंशन से करेंगे, द पेपर वर्क, उनका कॉन्फ्लिक्ट, इधर का कॉन्फ्लिक्ट, मतलब ईच एंड एवरीथिंग हैज टू बी लाइक डॉक्यूमेंटेड प्रॉपरली। बहुत चैलेंजिंग, मतलब कि कुछ इधर का उधर नहीं होना चाहिए, बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा हर चीज के लिए। वो तो है ही। वही चीज सर, मतलब मिस्टेक और की कोई गुंजाइश नहीं है। है। हाँ हाँ। गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ना, गलती में तो वे लटका देंगे आपको। हाँ, वही वही बोल रही हूँ ना कि गलती की गलती में तो गुंजाइश सर वो जो हर है। छोटे पेनल्टी दे दे रहा है। है। नहीं। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है। हाँ, मैंने देखा ना, अभी आप डिसिप्लिनरी जब देख रहे थे, वहां पे आउटकम आया था। जो वेडिंग रिजॉर्ट में की थी उसको आई थिंक 1 लाख की पेनल्टी दी थी हाँ। उन्होंने। मैंने अभी देखा, आप जब ये हाँ, स्क्रॉल कर रहे थे। कई बार लालच आ जाता है ना इन चीजों में, ये बात है। मेन चीज यही है, बंदे को आ जाता है। देखो इसीलिए अब आप प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल वे में काम करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन ये है कि भाई, हालांकि